Hello everyone. Good morning dear students. Today we are going to study our new chapter, that is Unit 2, Olympic Value Education. In this chapter we are going to study that why we celebrate Olympic Games and what is the benefit of this. Some important knowledge about the Olympic which is related to its history and values. So how it affect our life, especially sports person life, let's say in this chapter. I just hope you all are fine, you all are safe, you are in a good condition of your health and you are doing your study very well. So as you know that we have already completed our first chapter, which is related to that if you have any questions about that why we choose physical education as your subject, then I think you get your all answers, that why should you choose physical education as your subject and how can you improve yourself in your career with this subject. So if you seen the video, then well and good, and if you not, please go on our SCA app and see this video. So students, today we are going to start our new chapter, that is Olympic Value Education. And first of all we should start with our introduction. Let's start. Olympic Value Education and Olympic movement is a wide term. It is not a you can say that is not any short term that we just said a word and it is explained. We can't explain it in single word or some lines. It's a wide term which we have to study, which we have to understand, which we have to assimilate in ourselves. So see what is there. Olympic values education and Olympic movement is a wide term. It gives us the understanding of Olympic participation in its activities in past and present, along with the development of the games and the sports for competition. It has provided us healthy platform for competitive games and sports activities, as which is written in these lines, that why we Olympic is important. That means Olympic value education is a really wide term in which we can study that how it facilitates a healthy competition environment for the sport person. It gives equal chance for both men and women in the games, and their participations is really fair, and it's not going to be show any type of biasness, whether it is depend on the gender perspective or it is in the it considered in the country perspective. It consider all the things, whether it is any country or it is for male and female. And what is main thing is there? See this highlighted term, Olympic value education and Olympic movement is related with link between ancient Olympic games with the modern Olympic games and development of competitive sports activities at various levels, including Paralympics and Special Olympics. It has promoted the development of physical and moral qualities to bring together the athlete of the world in great coordinal festival sports. That means the Olympic give us a chance to to gather, to play, to improve ourselves, and special it give us a message of brotherhood. Now see in this paragraph, what is written here? To understand Olympic movement, one must be aware about the ancient Olympic games, modern Olympic games, Winter Olympics, development of games and sports at every level, Asian Games, Continental Games, etc. This movement also promotes and regulates the development of the various games and sports at a different level. It has been explained in the given topics such as ancient Olympic games, modern Olympic games, Winter Olympic games and Asian Games.
Today, Olympic Games are the world's most spectacular and greatest sporting festival of the modern time. इन आवर टाइम, अभी के टाइम पे हमारे लिए जो ओलंपिक है एक बहुत ही वाइड एरिया है, एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सारे स्पोर्ट पर्सन आपस में मिलते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम पूरी तरह से, हमारे अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे हम तरीक़ों से हम अलग हैं, हम अपने फूड में अलग हैं, हम अपने कल्चर में अलग हैं, हम अपने सोसाइटी में अलग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स लाइक। हम सब एक हैं और हम सभी को एक दूसरे को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट, एक ब्रदरहुड की जो मैसेज है वो हम ओलंपिक के थ्रू पूरे वर्ल्ड में देते हैं। और ओलंपिक गेम्स को समझने के लिए आपको बहुत सारे टर्म समझने होंगे, लाइक एशियन गेम्स, कॉन्टिनेंटल गेम्स क्या होते हैं, विंटर ओलंपिक्स क्या है, मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है, एंशिएंट ओलंपिक्स क्या है। इन सब चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज होती है तब आप जाके इस चीज़ को, ओलंपिक्स हमारा रियल में क्या है और क्यों हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बहुत ही वाइड वर्ल्ड लेवल पे, जो कि अगर हम कहें तो हमारे स्पोर्टिंग फेस्टिवल के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो ये सब क्या है, लेट्स सी इन दिस चैप्टर। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। द ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स बिलोंग टू ग्रीस, प्लीज माइंड दैट. It is really important point that the origin of Olympic Games belongs to Greece. जो ओलंपिक के जो हम कह सकते हैं रूट है, जो स्टार्टिंग है, वो ग्रीस से स्टार्ट हुई थी। कैसे? सी, गेम्स वेर participated in prehistoric period and continued for many centuries as a Greece festival. These records says that first historic mentioning of गेम्स, सबसे पहले ये जो गेम स्टार्ट हुआ था वो कहाँ स्टार्ट हुआ था? ग्रीस में स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग 776 BC, द गेम्स वेयर प्लेड इन द स्टेट ऑफ एथेंस नियर द वैली ऑफ एपर रिवर एट ओलंपियाड. द गेम वेयर हेल्ड विद द रिलीजियस कस्टम इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड ज्यूस. वो ज्यूस के ऑनर में इन्होंने एक गेम स्टार्ट, अपना एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था। ग्रीस में जो ये स्टार्ट हुआ था, उस गेम को वो उनके जो ज्यूस उनके गॉड थे उनके रिस्पेक्ट में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था और बाद में जाके वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो गया। द सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स begins from the new moon day in July after 4 years. The event of Olympic continued for 5 days in precise order. On the first day of games, the priest performed the rituals with the grand opening and the burned the sacred torch. On the next day, amphibians, animals games were played. On the third day, dialogue, Delos foot race, Delicious crossed race of the equestrian, and the next one is pentathlon, combining of the running and other contact games performed. On the fourth day, pugilies, boxing, wrestling, sword fighting and other contact games were played. जो स्टार्टिंग में उन्होंने ग्रीस में स्टार्ट किया था ये गेम, तो हर 4 साल के बाद वो इसे सेलिब्रेट करते थे। दैट मीन्स 5 साल में एक बार वो सेलिब्रेट करते थे इसको। और उनका स्टार्टिंग कैसे होता था? जो जुलाई का न्यू मून डे है, जुलाई का जो पहला मंथ स्टार्ट होता है, न्यू मून जो स्टार्ट होता है, वहाँ से अपने गेम को स्टार्ट करते थे। पहले दिन ये टॉर्च लाइटिंग करते थे, ओथ लेते थे और अपनी सेरेमनी को एक ग्रैंड ओपनिंग की तरह से वहाँ पे करते थे। फिर उसके बाद जो एनिमल से रिलेटेड गेम है, पहले दिन दूसरे दिन वो होता था, एनिमल से रिलेटेड गेम होते थे। फिर थर्ड डे जो होते थे वो फुट रेस और डिफरेंट टाइप की रेसेस वो करते थे। फिर उसके बाद फोर्थ डे पे बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग ये सब होती थी और ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिसाइज वे में होती थी। द प्राइस, जो उनका प्राइज़ था, ये चीज़ बहुत माइंड करने वाली है कि उन्हें जो प्राइज़ मिलता था, द प्राइज़ जो था वो क्राउन होता था, मतलब ताज एक मिलता था। गिवन टू द विनर्स वी आर मेड फ्रॉम ऑलिव लीव्स। ऑलिव लीव्स, ऑलिव जानते एक पौधा होता है, एक रिच है, जो वहाँ के रिचुअल के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता था उस टाइम पे। उन्हें रिस्पेक्ट के फॉर्म में उस ऑलिव लीव्स का एक क्राउन पहनाया जाता था।
The famous heroes of these games were Homer, Atlas, Hercules, गिलेन एक्सेट्रा. हरक्यूलिस का नाम आप सबने सुना होगा. लोग कहते थे उनके पास भगवान की ताकत है क्योंकि फिजिकली ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड मेंटली ऑल्सो. तो वहाँ उस टाइम के जो बहुत ही फेमस, जो हम कह सकते हैं वहाँ पे उस टाइम के जो थे फेमस स्पोर्ट पर्सन थे, वो होमर थे, एटलस थे, हरकुलिस थे, गैलन थे और भी बहुत सारे लोग. एंड आई स्टिल रिमेंबर इज अवर स्टोन्स एंशिएंट ओलंपिक गेम्स came to sudden end where are it is still remember in our stones ancient Olympic games came to a sudden end when the Roman Emperor Thaddeus banned these games in year 394 AD. The glory of these games vanished with the time at ruins all the present in Olympiad. जो समय के साथ उन्होंने जो शासक था, एक रोमन एम्परर था थेडियस, और उसने इसे बैन कर दिया था इस गेम को, जो कि बाद में जाके अब हम इसको एक नए रूप में सेलिब्रेट करते हैं. क्योंकि बैन के पहले जो था वो एंशिएंट था ओलंपिक, और बैन के बाद जो थे वहाँ पे रोमन एम्परर, उन्होंने बैन किया उसको, जो कि किसी भी एंगल से अच्छा नहीं था. फिर उसको चेंज किया गया उनके बाद में, जिसे हम मॉडर्न ओलंपिक्स कहते हैं. अब मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है, लेट्स सी. The revival work of modern Olympic Games was undertaken by Baron Pere de Coubertin nearly 1500 years after the last ancient Olympic Games in the year 1986 at Athens. जब बैन हुआ था गेम, उसके 1500 साल के बाद ये गेम दोबारा स्टार्ट किया गया 1986 में एथेंस शहर में. और इसको किसने स्टार्ट किया था उस टाइम पे, बैरन पेरे दे कर्बर्टन ने. इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन 25 दिसंबर, इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑन द 25 दिसंबर 1982. इन दिस पैसेज यू कैन सी Baron Coubertin, born in an Italian family and settled in France, planned the restorations of Olympic Games in 1900 at Paris with the motive to strengthen amateur sports to develop everlasting qualities for the modern education. In June 1894, the International Conference of Amateur Sports at Paris passed the resolution to create the International Olympics Committee (IOC) to observe the conduct of modern Olympic Games. But the zeal of the delegates was so much that they insisted the first game to be held in 1986 at Athens. Since these games were held after every 4 years, the honor of holding the modern Olympic game is ensured on the city is not a country or region. The choice of city celebration is with IOC. That means ओलंपिक का जो पूरा रूपरेखा है वो तब तैयार हुई थी 25 नवंबर 1892 में. 1892 से 1894 के बीच ओलंपिक के जो रूल रेगुलेशंस हैं, कैसे इनको पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है, कैसे इसको कंडक्ट कराना है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने बनाए, ऑर्गेनाइज़ किए. और फिर उसमें किसी भी तरह का किसी के ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं था. फिर है कुछ मेन फीचर्स हैं आपके. जो गेम्स थे 1986 में एथेंस में हुआ था, आप देख रहे हैं 1900 में पेरिस में हुआ था. गेम्स हर साल में, मतलब 5 साल में एक बार मनाया जाता था. तो 96 में एथेंस में, फिर 1900 में पेरिस में, फिर 1904 में सेंट लेविस USA फ्रांस में हुआ था. मतलब हर बार अलग अलग देश में ये हमारे जो ओलंपिक गेम्स थे वो बार बार क्या किए गए, ऐड किए गए. और हर गेम की अपनी कुछ खासियत थी, जो कि जब मैं आपको PDF शेयर करूँगी तो आप उसको पढ़ सकते हो ईजिली. दैट इज़ योर पार्ट, यू हैव टू स्टडी दैट. Now come on Paralympics. What is Paralympics? As we know that sports for athlete with
हैज़ एक्सिस्टेड फॉर मोर देन 100 ईयर्स. जो हमारे ओलंपिक्स है 100 ईयर्स से ज़्यादा का हो रहा है. एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स क्लब ऑफ द डीफ पैरालंपिक्स मीन्स जो लोग एक तरह से हम कहते हैं ना स्पेशल केसेस होते हैं, जो कि अभी के टाइम पे हम क्या कहते हैं डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, उनके लिए भी ओलंपिक्स होती है. कैसे होती है, उनके रूल्स रेगुलेशंस कुछ अलग होते हैं. उनका जो एरिया है उनको उस हिसाब से इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि वो जिस गेम में इंटरेस्टेड हैं और जिसके लिए वो कैपेबल हैं वो कर सकें. तो स्पोर्ट्स फॉर द एथलीट्स विद द एम्पावरमेंट has existed for more than 100 years and the first sports club for the deaf were already in existence in 1888 in Berlin. पैरालंपिक गेम्स के बारे में जो पहली बार स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी वे अपने परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. फिर उसके बाद है स्पेशल ओलंपिक्स. What is Special Olympics? Special Olympics Special Olympic International was started by Eunice Kennedy Shriver, sister of former President of United States of America John F. Kennedy. The idea was born out of Shriver's experiences of the witnessing the social exclusion of people with intellectual disabilities who were placed in the custodial institutions as a routine. Shriver believed that with equal opportunities and experiences as everyone else, people with intellectual disabilities could accomplish for their every though possibles. दैट मीन्स जो इनका था स्पेशल ओलंपिक्स था वो क्या था, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं. जैसे फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं, डेफ हैं, डम्ब हैं, वो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ब्लाइंड हैं, तो वो फिजिकल डेफ है. वहाँ पे जो उनकी डिसेबिलिटीज़ है वो फिजिकली है. दैट मीन्स कि वो उनके बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जिससे कि वो अपनी मोटर स्किल्स परफॉर्म करने में एबल नहीं है. बट एक हमारी होती है जो डिसेबिलिटीज़ होती है वो मेंटली होती है. दैट मीन्स आप फिज़िकल रूप में पूरी तरह से कंप्लीट होते हो, आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपके ब्रेन में है वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रॉपर रखता है, आपको पीछे रखता है. जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्मॉर्फिया है, डिस्टोपिया है. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो कि फिज़िकली पूरी तरह से हेल्दी होने के बावजूद भी हम अपने जो डेली के काम हैं या फिर कुछ स्पेशल ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर पाते हैं. जैसे डिस्टोपिया के पेशेंट को अगर हम देखें तो डिस्टोपिया के पेशेंट को वो एक अपने आसपास इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है जिसमें उसको सब कुछ बहुत ही उजड़ा हुआ, सब कुछ बहुत बेकार दिखता है. जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन जब वो देखता है तो वो एक अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है और वहाँ पर उसको सब कुछ बहुत उल्टा पुल्टा दिखना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो नॉर्मल चीज़ भी उसके लिए बहुत हार्ड हो जाती है वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे कोई भी काम करना. तो इट्स रियली डेंजरस. तो उनको ट्रीटमेंट के लिए अलग रखा जाता था. बट यहाँ पे जो स्पेशल ओलंपिक्स है ऐसे पर्सन को भी चांस देने की बात की गई जो कि मेंटली डिसेबल हो. दैट मीन्स चाहे आपकी डिसेबिलिटीज़ फिजिकली हो, चाहे आपकी डिसेबिलिटीज़ मेंटली हो, ओलंपिक्स में हर पर्सन के लिए उसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और प्लान है कि कैसे उनको गेम कराना है. सो just read this chapter. Now come our next topic, Olympic system, symbols, torch, motto, oath. हम ओलंपिक जब स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जो ओलंपिक स्टार्ट करने का एक मोटो है. हमारे ओलंपिक्स जो रिलेटेड है वहाँ पे सिंबल्स हैं, जो टॉर्च है, मोटो है, ओथ है, क्या है, वो सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में. तो जैसा कि ओलंपिक फ्लैग के बारे में आप सब देख रहे हैं, ओलंपिक flag was designed according to the Coubertin suggestions in 1913, but this was firstly flown to Olympic Stadium in 1920 at Antwerp Olympic Games. बहुत 1913 में ही इसका फ्लैग डिज़ाइन कर लिया गया था, बट पहली बार कब उसको लहराया गया था ओलंपिक स्टेडियम में 1920 को. इट कंसिस्ट ऑफ 5 colored rings circle interlinked with each other on
वाइट बैकग्राउंड, एक वाइट बैकग्राउंड पे 5 कलर के रिंग्स थे जो कि क्या थे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे किसी न किसी तरह से, उसको वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे रखा गया था। और वो कलर कौन कौन से थे, प्लीज़, कलर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ब्लू, ब्लैक, रेड। जो फ्लैग है पूरा वाइट होता है और उसमें जो 3 कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड, ये ऊपर होते हैं, और येलो और ग्रीन क्या होता है, नीचे होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आप देख सकते हो फ्लैग को भी, जो हमारा ब्लू है, ब्लैक है और रेड है, वो कहाँ पे है, ऊपर है, एंड द ग्रीन एंड येलो इज एट द डाउनवर्ड। नाउ सी नेक्स्ट, ओलंपिक टॉर्च। why we use Olympic torch and why we do that, let's see. First time an Olympic flame was ceremoniously lighted in 1928 at Amsterdam Olympics. Amsterdam Olympics में सबसे पहले ये जो टॉर्च है उसको लाइट किया गया था। क्यों? This Olympic has symbolic the community between the ancient and modern Olympic Games. The torch used to kindle of the flame at the host stadium in the first lit by the sun rays at Olympiad, Greece, and they carried this side of games relay of runners. वहाँ पे एक रिले रेस होता है जिसमें दौड़ के जो होते हैं, जो होस्ट कंट्री होती है, वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, फर्स्ट डे जलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक मोटो। ओलंपिक का मोटो क्या होता है? The Olympic motto is Situs, Elitus, Fortis. The Olympic motto is Situs, Elitus and Fortis. This means perform for the fastest, highest and strongest competition. This motto was pronounced by Baron Pierre de Coubertin at Paris Olympic in 1900. जो वहाँ का मोटो है, जो हमें क्या करना है, फास्टेस्ट, हाईएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन के लिए हुआ था। ओलंपिक प्राइज़, ओलंपिक के लिए प्राइज़ क्या है? जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि जो एंशियंट ओलंपिक था वहाँ पे प्राइज़ हमें क्या मिलता था, ऑलिव लीव्स का एक क्राउन पहनाया जाता था विनर्स को। बट अब क्या है, इन एंशियंट टाइम्स द ओलंपिक हीरोज़ वेयर अवॉर्डेड विद द ऑलिव क्राउन। पहले तो ऑलिव क्राउन से उन्हें अवॉर्डेड किया जाता था, बट इन मॉडर्न ओलंपिक दे आर रिवॉर्डेड विद मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स। बट आज के टाइम पे उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। फर्स्ट पोजीशन रिसीव्ड गोल्ड मेडल, सेकेंड पोजीशन गेट्स सिल्वर मेडल एंड थर्ड पोजीशन गेट्स ब्रॉन्ज मेडल। अप टू फर्स्ट 6 पोजीशन दे ऑल्सो गेट सर्टिफिकेट्स। एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग गेम्स आर सेट बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। जो अब हैं उनको क्या मिलता है, फर्स्ट को गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड आता है गेम्स में उसे सिल्वर मेडल, और जो थर्ड आता है उसे ब्रॉन्ज मेडल। और जो पूरे रूल्स और रेगुलेशंस है ओलंपिक के, वो किसके द्वारा डिसाइडेड किए जाते हैं, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। द हेड ऑफ ऑफिस IOC इज़ एट स्विट्ज़रलैंड। जो वहाँ का ओलंपिक का जो है हेड ऑफिस, वो कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में सभी को अवेयर होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हो तो हमारे ओलंपिक्स में जो ओथ होती है उससे रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो ओथ है क्या। देखते हैं, ओलंपिक ओथ इज टेकन बाय एथलीट ऑफ द होस्ट कंट्री। जो ओलंपिक ओथ होती है वो होस्ट कंट्री जो होती है उसके द्वारा ली जाती है। He holds the corner of the flag on behalf of all competitors. वो फ्लैग का एक कॉर्नर सभी के तरफ से, जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी तरफ से वो फ्लैग को होल्ड करता है, उसका कॉर्नर। एंड द ओथ इज, और जो ओथ है वो किस तरह से है, इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दीज ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sports without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams. वो सारे जो वहाँ पे गेम पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उनकी तरफ से ओलंपिक फ्लैग को होल्ड करता है और उनकी तरफ से ओथ लेता है
कि वो सारे रूल रेगुलेशन मानते हुए गेम खेलेंगे बिना किसी भी ड्रग या किसी भी इलीगल प्रोसेस को अपनाए हुए। अब क्या है, उन्होंने ऐसी ओथ क्यों ली कि वो ड्रग नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। Today's sports has become very professional and there is a lot of fans and money involved in sports. Thus athletes, players sometimes choose illegal method to achieve this. Many times they take drug to enhance their performance. All unnatural method of enhancing performance are banned in Olympics. Today IOC is strictly following its regular check towards drug and sports. It has also set up many laboratories to test athletes for drugs. The testing laboratories are named as a World Anti-Doping Agency. It conducts regular check over equipments. IOC also provide the technical help to help the stadiums and provide the latest knowledge related to the timing of the athlete. एथलीट से रिलेटेड IOC ने एक रूल किया है कि कोई भी अननेचुरल तरीका आप नहीं अपना सकते हो अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अगेन ओलंपिज्म, ओलंपियाड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आइडल्स और वैल्यूज़ वहाँ पे क्या हैं, जो ओलंपिक आइडल जो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या है उसके आइडल्स। टू ड्रा द अटेंशन टू द वर्ल्ड एट द फैक्ट नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग। हम एक तरह से हर देश को एक जैसी अपॉर्चुनिटी देते हैं, एथलीट हो वो मैन हो चाहे वुमन हो, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से गेम में पार्टिसिपेट करने का चांस देते हैं। हम इस गेम को सेलिब्रेट करते हैं ताकि पूरी जो विश्व है, पूरी जो दुनिया है वो एक दूसरे से जुड़ सकें और जो स्पोर्ट पर्सन की जो क्वालिटी होती है, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, जो गेमिंग का जो नॉलेज होता है वो प्रॉपर अपने अंदर रख सके। इन दिस चैप्टर यू आर सीइंग दीज थिंग्स. Some important questions are there. When I'm sharing that PDF, you should solve these questions by your own. आप इस चैप्टर को पढ़िएगा प्रॉपर, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. I just hope this chapter will be clear to you. We will meet in next chapter. Till then, take care and have a good day.